Hello, good morning everyone. Myself Shahana B, and today we will be studying about computer networks. From the topic itself, you have seen that ASJRF with fundamentals. In this video, we will try to clear the fundamentals of computer network. You can expect a good amount of 10 to 12 questions from computer networks. Those questions can be based on your subnetting, your networking, what are the different protocols of network layer, what are the different protocols of data link layer, and apart from that, error correction, error detection algorithms, Huffman coding. Apart from that, you have parity checking. Numericals have been asked also from your cryptography also as well, the RSA algorithm, the DES algorithm rounds, the AES algorithm rounds, the Blowfish algorithm rounds. All of this will be understood only when you try to understand the fundamentals. And once you know all what I'm about to teach in this slide, you will be definitely understanding the higher things as well. So good amount of questions is asked from this unit every year, twice in your NetJRF examination. Okay. So first we will start what a computer network is. Even if you do not know this fancy term that what computer network is, you must be knowing how to have a conversation, how to have a network. Simplest example, if I can give is that when you are sitting in a classroom, then obviously you will have conversation with your friends. What kind of conversation do you have? क्या चाहिए, टीचर नहीं देखना चाहिए ना आपके कॉन्वर्सेशन को. दैट टाइम यू ऑलवेज वांट कि टीचर ना पकड़ ले भाई मुझे, मैं तो कॉन्वर्सेशन कर लूँ अपने दोस्त से, क्योंकि दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे. सो व्हाट डू, यू पास चिट्स टू योर friend, है ना. That is a kind of a conversation. What if the entire class wants to converse? Then they can have different colors of chit and they can have conversation with each other, right? Similarly, when you talk about computers, what it is? Computers, two or more systems that are interconnected if they exchange information. Means two or more systems that are placed not necessarily very close to each other, they can be apart from each other also, and when they are sharing information, that's when you say it's a computer network. अभी यहाँ पे I have placed this diagram. ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है. अब इस डायग्राम में what do you see? क्या यही सिर्फ एक कंप्यूटर नेटवर्क है कि हमारे पास एक सेंट्रल हब है और एक सेंट्रल हब से बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द ओनली नेटवर्क? क्या ये एक ही नेटवर्क ऐसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारे पास सब टाइप के नेटवर्किंग्स एग्जिस्ट करते हैं. हाउ दे आर फिजिकली लेड आउट. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैंने अगर एक पिक्चर यहाँ पे डाली है तो वो उसी तरीके से लेड आउट हो सकते हैं. Can be the possibility my systems are laid out like this. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कैन बी द पॉसिबिलिटी कि एक सेंट्रल सिस्टम से अटैच्ड है मेरे सारे सिस्टम, राइट. कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास एक ड्रॉप लाइन है, उस ड्रॉप लाइन से सारे मेरे सिस्टम्स अटैच्ड है. सो हर बार हमारे पास एक अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है हाउ फिजिकली दो सिस्टम्स आर लेड आउट. एंड वन मोर थिंग, दीज लाइन कॉन्फ़िगरेशंस हाउ दे आर लेड आउट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजीज. ठीक है, ये टोपोलॉजीज एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो कि फिजिकल लेयर देखती है. दैट वी विल बी स्टडिंग लेटर इन माय सेकंड लेक्चर. सो प्लीज बी अवेटेड फॉर दीज टोपोलॉजीज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आउट ऑफ दिस रिंग टोपोलॉजीज से ऑलरेडी PYQs आ चुके हैं टोकन मैनेजमेंट पर भी. सो दिस इज one of the most awaited topics which we will be covering in our next lecture. So please be joined for that as well. Now after that, ये हमने बता दिया what are the components of a computer. Obviously if you want to communicate, है ना, दो लोगों को अगर communicate करना है, networking करनी है, तो ऐसा तो नहीं है मैंने बोल दिया आपने सुन लिया. No, you need to comprehend, you need to understand. There is a medium with which we will communicate. Similarly, when you talk about computer networks also, there are various components with which you communicate. Okay, first component क्या होता है? Obviously computer ही नहीं है तो communicate क्या करोगे? So you will have systems via which you will be communicating. After systems what do you have? Cables. Obviously मैंने अभी बताया कि आपको मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट करना है तो मल्टीपल केबल्स होंगी कनेक्ट करने के लिए, है ना. ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को. देन अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. व्हाट इज
NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC ना बच्चे, ये जो NIC रहता है ये कह लो आप, ये आपका VIP पास है, ठीक है। ये VIP पास किस लिए चाहिए रहता है आपको? कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो NIC कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। ये आपको पूछा भी जा सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड व्हाट इज NIC कार्ड कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें कंपोज करता है। पहला आपका मैक एड्रेस कंपोज करता है, दूसरा है आपका पोर्ट नंबर कंपोज करता है। अब आप पे पूछोगे मैम व्हाट डज दिस टर्म, पोर्ट नंबर क्या बता दिया आपने, अभी अच्छा खासा पढ़ रहे थे, अलग चीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आप। सो दिस मैक एड्रेस, इसको हम और भी बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट एज फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें और ये सारी जो टर्म्स हो गई ना बच्चा, ये सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आप क्या बोलते हो। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो राउटर्स यूज़ करते हैं। अगर आपको 2 सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आपको मैक एड्रेस की ज़रूरत है। 2 सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करने का अगर मैं बताऊँ कि कैसे, तो लेट्स सपोज से ये सारा इरेज करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे करते हैं इसको कम्युनिकेट, तो मैक एड्रेस के बारे में हमको जानना है और दूसरा हमको जानना है पोर्ट नंबर के बारे में। पोर्ट नंबर तो पहली चीज़ हर एक सिस्टम में होगा। मैक एड्रेस लेट्स सपोज से ये मेरा एक एयरटेल का नेटवर्क है, ठीक है, दूसरा भी मेरा एयरटेल का नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, यहाँ से मैसेज पास करना है, यहाँ पे पहुँचाना है, तो मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैक एड्रेस की, और ये सिंपल मेरा डेटा लिंक लेयर से पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। बट इफ़ इन केस मुझे एड्रेस पहुँचाना है फ्रॉम एयरटेल टू जियो, अब मुझे जब मैसेज पहुँचाना है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे मैक एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे IP एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। IP एड्रेस क्या हो गया मेरा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल किस टाइप का एड्रेस है आपका? डायनामिक एड्रेस है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। मैक एड्रेस क्या है आपका? एक फिक्स्ड एड्रेस है जो कभी चेंज नहीं होगा। एक स्टैटिक एड्रेस है जो चेंज नहीं होगा, जो आपके डिवाइस में NIC कार्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। और एक पोर्ट नंबर रहता है। पोर्ट नंबर मतलब हर एक सिस्टम को आपने एक नंबर दे रखा है ताकि वो उससे कम्युनिकेट कर सके। अब समझ में आए? ये 3 कंपोनेंट समझ में आए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्विचेस, ठीक है। स्विचेस को हम हमेशा कंपेयर करते हैं हब से, ठीक है। हब को हम क्या बोलते हैं? हब को हम बोलते हैं बुद्धू डिवाइस। बुद्धू डिवाइस मतलब अगर हब है और उसको सारे सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन करवानी है, तो इट इज़ लीस्ट नोन कि रिसीवर कौन है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द अदर सिस्टम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा बुद्धू डिवाइस। बट इफ इन केस इफ आई स्पीक ऑफ स्विच, तो स्विच क्या करेगा? स्विच पर्टिकुलर आपके रिसीवर को सेंड करेगा। लेट्स सपोज से सिस्टम 1 ने सिस्टम 2 के लिए मैसेज दिया है, सो वॉट एवर मैसेज विल बी रिसीव्ड इन योर स्विच दैट विल बी गिवन टू सेकेंड सिस्टम ओनली। और ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि स्विच के पास अपनी खुद की एक टेबल रहती है जिसमें पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस stated होता है, ओके। सो दीज आर स्विचेस एंड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे क्या हो गए हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े हम, ओके। आगे की बात समझने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कहने को तो एक बड़ा लाइट टॉपिक है, ठीक है, कि ओके मैम आप तो पढ़ा रहे हो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, थ्योरी हम समझ लेंगे। नहीं, व्हाट्स द फैक्ट इन दिस। अगर यही क्वेश्चन आपको ना, क्योंकि क्या होता है नेट में आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर यही चीज़ ब्लेंड करके दे दी जाएगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम इसको कैसे पढ़ें कि हमको याद भी रहे? तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़िए इनको,
ठीक है, तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बढ़िया तरीके से याद होंगे। ओके, नाउ एडवांटेजेस मींस इनहांस्ड परफॉर्मेंस एंड स्पीड। सबसे पहले तो स्पीड मिल जाती है हमको, ठीक है। अब स्पीड कैसे, अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस मींस जहाँ पे सारा का सारा द एंटायर डेटा ऑफ माइन इज कलेक्टेड। नाउ व्हेन आई एम हैविंग दिस डेटाबेस एंड आई वांट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, अगर मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 डिवाइसेस हैं, चारों के पास अपना अपना डेटाबेस है और चारों के पास सेम ही डेटाबेस है। अगर मैं बोलूँ इसमें कंटेंट DEL है, लेट्स सपोज से D1 कंटेंट है, डेटा 1 है, इसमें डेटा 2 कंटेंट है, इसमें डेटा 3 कंटेंट है, इसमें डेटा 4 कंटेंट है, तो सभी में सेम कंटेंट है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर decreasing the efficiency because the data load at each node is the same. So instead what you can do, you can just maintain this content at one place and then you can share it to all the other places where it is required. So instead of maintaining the same data at every other place in your network, what will you do? You will just maintain that data at a single place and then you can share it from there. बढ़िया एग्जाम्पल इसका ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम के आखिरी दिन पे क्या होता है, नोट्स सबके पास होती हैं क्या, नहीं। वी एज अ राउडी स्टूडेंट्स नोट्स कभी भी नहीं होती हमारे पास, अंतिम दिन हमारे पास नोट्स आएंगी और वो नोट्स कहाँ से मिलेंगी, टॉपर से मिलेंगी कि टॉपर भाई जितनी तुम्हारी नोट्स हैं जस्ट फॉरवर्ड ऑल ऑफ देम टू अस, हम उससे पढ़ लेंगे, है ना, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन देखो, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी, क्वेश्चन भी एक डालूंगी कि कॉस्ट एक बून है या फिर एक बेन है, एडवांटेज है कॉस्ट आपका कि डिसएडवांटेज है, तब जाके हम ये टॉपिक के पर डिस्कशन करेंगे। अभी तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, बेटर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। जब भी आप नेटवर्क में रहते हो तो वहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ मल्टीपल थिंग्स विच विल अलाउ यू टू हैव डेटा प्रोटेक्शन। For that first you can have a firewall, okay? अब firewall क्या कर लेगा आपके लिए, firewall will check all the incoming sources, all the outgoing sources। ये मेरा एक नेटवर्क है, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का firewall मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब whatever data is incoming it will check, whatever data is outgoing it will check। so कोई भी किसी भी तरह का अनवांटेड डेटा अंदर नहीं जाएगा, कोई भी तरीके का अनवांटेड डेटा बाहर नहीं जाएगा। सो अ फायरवॉल इज केप्ट, ओके। डेटा सिक्योरिटी एक चीज हो गई। नेक्स्ट यू कैन हैव इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप में कभी मैसेज पढ़ा है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इसका क्या मतलब होता है, पढ़ तो लेते हैं अपन पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि छोड़ दो किसी और दिन पढ़ेंगे। नो, व्हाट इज इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन मीन्स अगर मैं बोलूँ मैं ABCD, ये मेरा मैसेज है, ABCD हालांकि कोई भेजेगा नहीं, एग्जाम्पल ले लो, ABCD ये मेरा मैसेज है, अब मुझे इस मैसेज को भेजना है, तो अगर मैं उसको ऐसे लिख कर भेजूँ तो ये क्या किसी को समझ में आ रहा है कि मैंने ABCD भेजा है? नहीं, ये मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी है, ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी है। कंप्यूटर को पता है कि ABCD इस प्रकार भेज दिया गया है, ठीक है। नाउ दिस विल बी डिक्रिप्टेड, फिर इसको वापस कन्वर्ट करेंगे ABCD में। सो दिस इज योर इंक्रिप्शन, ओके। इंक्रिप्शन एक खुद में एक टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, पूरी एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल लेटर, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? ऑथेंटिकेशन सुना है आपने, सुना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स लगाते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, ये सब ऑथेंटिकेशन हो गया। उसके बाद आता है ऑथराइजेशन, मतलब जो भी डेटा आपके लिए बना है वो आपको मिल जाएगा। एज अ एम्प्लॉय क्या मैं एडमिनिस्ट्रेटर का डेटा ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। एज अ एम्प्लॉय मेरे पास सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा होगा जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। आफ्टर दैट सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर एंड डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर एंड डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है? नेटवर्क बेस्ड एग्जाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन में। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन केस अगर आपने डेटा मेंटेन किया, सेम एग्जांपल को दोबारा एक बार देख लेंगे हम, उसी सेम एग्जांपल से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि 4 जगह हैं, 4 नोड हैं मेरे पास, ठीक है, एक ऑफिस मान लो, ठीक है, ऑफिस में 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर में 4 सिस्टम हैं, चारों सिस्टम में सेम डेटा मेंटेन्ड है पर वो इंटरकनेक्टेड है, वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपस में कनेक्टेड है, एंड दिस इज ऑल्सो मेंटेनिंग D1 डेटा, दिस इज ऑल्सो मेंटेनिंग D1 डेटा, दिस इज ऑल्सो मेंटेनिंग D1 डेटा। तो
क्या कर रहे हो, आप एफिशिएंसी स्लो कर रहे हो, अपने सिस्टम को फुल कर रहे हो, और कुछ डेटा वहाँ पे रखा जा सकता था आप नहीं रख रहे हो. व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड, यू आर डूइंग रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. सो इंस्टेड जस्ट मेंटेन दिस डेटा एट वन प्लेस, ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया. एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन सेंड इट टू ऑल द अदर प्लेसेस. फिर वहाँ से आप इसको जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे भेज दो. तो दिस विल बी योर सेंट्रलाइज सिस्टम. ये क्या हो गया आपका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जहाँ से यू कैन सेंड इट टू ऑल दी अदर नोड्स. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट चीज़ है इंस्टेंट कम्युनिकेशन विया ईमेल और मैसेजिंग. ऑब्वियसली आप ईमेल एंड मैसेजिंग के थ्रू, ये तो आप बहुत करते ही होगे, है ना. अभी तो अपने पास टाइम है कि अपन सिर्फ ईमेल ही कर रहे हैं, बिकॉज ये लाइक जॉब, ये जॉब, वो जॉब, तो ईमेल करते जाते हैं, है ना. नेक्स्ट इज रिमोट एक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना है? नहीं सुना है तो अभी सुन लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी सीख लेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि मेरे पास एक रिमोट सर्वर रहता है. ठीक है, आई एम नॉट मेंटेनिंग डेटा इन माय लोकल रिपोजिटरी. ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम पे डेटा मेंटेन नहीं है, किसी एक अलग जगह पे कहीं एक रिमोट डेटा रिपोजिटरी में मेरा डेटा मेंटेन्ड है. वहाँ पे अच्छा खासा हार्डवेयर है, सर्वर है, सब कुछ है. आई एज अ यूजर आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ स्पेस फॉर माई डेटा. सो वॉट विल आई डू, इवन इफ I am having or I am running an organization, my organization cannot afford that much of data. इतना data मेरी organization afford नहीं कर पा रही है. So what will I do? I will send this data to क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, जो कि एक कहीं अलग जगह पे होगा. ठीक है, वेरी डिफरेंट प्लेस पे होगा. फ्रॉम देयर आई कैन रिट्रीव दिस डेटा वेन एवर नीडेड. जब भी ज़रूरत है वहाँ से डेटा मंगा लेंगे अपन. ठीक है, तो यहाँ से डेटा आ जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल कर लो आप जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करना है. तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि डेटा आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डेटा का सिर्फ यूज़ कर रहे हो. डेटा मेंटेनेंस की किसकी हेडेक है? क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, क्लाउड सर्वर्स की हेडेक है कि जो भी डेटा है दे विल मेंटेन इट, they will keep the security, everything. Next comes, these are all about your advantages. अब बढ़ेंगे अपन थोड़ा disadvantages की तरफ, और उसी में मैं पूछूंगी आपसे ये क्वेश्चन जिस पे अभी हम आएंगे. तभी मैंने वो कॉस्ट वाला फैक्टर छुड़वाया था, तो थोड़ा वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी आगे ये भी बचा है और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बची हुई हैं. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. ये कॉस्ट पे आते हैं अभी अपन. क्वेश्चन है अपना कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कोएक्सियल केबल्स हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई, है ना. सो देयर आर वेरियस वेज. तो अगर इनकेस ये केबल्स ख़राब हो गई किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, किसी भी एक्सटर्नल फाइबर चीज़ की वजह से इंटरनली वो ख़राब हो गई, तो हमारा कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा. तो उनको मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज केबल एंड हार्डवेयर इशू. वही जो मैंने आपको बताया अभी, केबल एंड हार्डवेयर इशू, इसका एग्जांपल देके बताया. और कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस तो आपका पूरा डेटा का भी होता है ना. नेक्स्ट इज सर्वर फेलियर्स एंड डिस्टर्ब्ड ऑपरेशंस. कई बार क्या हो जाता है कि आपका पूरा सर्वर फेल हो गया. लेट्स सपोज से क्लाउड सर्वर आपने मेंटेन किया, या फिर गूगल ऐप इंजन मान लो, या फिर अश्योर मान लो, सेल्सफोर्स मान लो, क्लैरिजन, ऑल ऑफ दीज आर योर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड रिमोटली. ठीक है, वहाँ का अगर सर्वर फेल हो गया मेन अथॉरिटी का, तो यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग, है ना. तो यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, बट अगर वो फेलियर हो गया तो ये नेटवर्क आपका फेल हो गया. देन वी विल कम टू दिस फैक्टर दैट कॉस्ट इज अ बून और अ बेन. अब सोचना है अपन को कि अगर मैं बोलूँ कि अच्छी मोटी रकम मेरी लगती है व्हेन यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क, और अच्छी मोटी रकम मुझे मेंटेनेंस में भी लगती है, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया. लेकिन एडवांटेज भी है कि अगर एक बार करेक्टली मेंटेन हो गया तो फिर हमको कोई भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा. इनिशियल स्टार्टअप अगर एक बार हो गया तो उसके बाद उसको हम रख सकते हैं. सो मुझे बताओ कि ये एडवांटेज हुआ कि ये डिसएडवांटेज हुआ, थोड़ा सा सोचेंगे. नेक्स्ट, सो अब ये कैसे एडवांटेज किस तरीके से. पहला, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग, कि इनकेस इफ यू हैव मेड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनिशियल टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया है, तो आफ्टर दैट छोटे मोटे मेंटेनेंस आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर हैविंग फास्टर कम्युनिकेशन. एफिशिएंसी इन कंप्यूटर मैटर्स अ लॉट. अगर आपके पास एफिशिएंसी है एंड ऑल ऑफ योर थिंग्स आर गोइंग वेल, तो बढ़िया काम चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, कि अगर एक बार सेटअप हो गया तो आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं लगाना है, आप डेटा के बीच में फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं. क्लाउड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्वियसली क्लाउड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन भी मैंने आपको बताया कि वो कैसे हो रहा है, कि आप
अपने लोकल डेटा रिपोजिटरी में डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट स्टोरिंग डेटा इन योर लोकल डेटा रिपोजिटरी, यू आर स्टोरिंग डेटा एट क्लाउड बेस्ड सर्वर्स, है ना, वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है. तो आपको डेटा मेंटेन नहीं करना पड़ा. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेटा, फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ से आपने डेटा को फेच करवा लिया, उसको यूज़ कर रहे हो. प्रोसेसिंग का जो काम है वो काम है आपके क्लाउड बेस्ड सर्वर का. मेंटेनेंस का जो काम है वो काम है आपके क्लाउड बेस्ड सर्वर का. सिक्योरिटी का जो काम है वो सिक्योरिटी का काम भी आपके क्लाउड बेस्ड सर्वर का है. ठीक है, तो ये सारा आपका कॉस्ट बचता है यहाँ पे. ये हो गए भाई एडवांटेजेस. अब अपन मूव ऑन करेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ. यही मैंने बोला कि अच्छा मोटा पैसा खर्चा हो रहा है व्हेन यू आर हैविंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. पहला इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हो ना, उस पूरे सेटअप के लिए बहुत पैसे लग रहे हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द नेटवर्क्स. नेक्स्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. कभी कभी पूरा आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर फेल हो गया तो वो पूरा बनेगा. एंड इट्स नॉट दिस दैट यू हैव गिवन योर डेटा इन क्लाउड बेस्ड सर्वर. मेनी पीपल हैव गिवन देयर डेटा इन क्लाउड बेस्ड सर्वर एंड दे वर मेंटेनिंग इट. देयर एंटायर सर्वर फेल्ड. अब उसको रिट्रीव करना, उसको मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले लेता है. ठीक है. देन पोटेंशियल डाउन टाइम लॉसेस, क्योंकि एक बार होता है कि मनी ड्यू टू डिसरप्शंस हमारे लग गए कि ये चेंज करवा दिया, वो चेंज करवा दिया, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है, तो डाउन टाइम लॉसेस उससे होते रहते हैं. सिक्योरिटी कॉस्ट भी रहता है. अगर फायर वॉल्स आपने अटैच करवाए हैं, इंक्रिप्शन सिस्टम्स हैं, ऑथराइजेशन सिस्टम्स हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए आपका एडिशनल खर्चा लगता रहता है. ठीक है. तो व्हेन द फाइनल वर्डिक्ट व्हाट आई कैन ड्रॉ इज इनिशियल टाइम पे कॉस्ट इज अ बून और अ बेन. पहले बताओ, इनिशियल टाइम पे बून है कि इनिशियल टाइम पे बेन है? इनिशियल टाइम पे बेन है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत लग रहा है. लेकिन अगर संभालना सीख गए तो फिर वो हमारे लिए बून है, बिकॉज यू नो हाउ टू टैकल योर डेटा, यू नो हाउ टू टैकल योर नेटवर्क. ओके. अब आगे बढ़ते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क में किन क्राइटेरिया को हम मानते हैं कि भाई ये हमको चाहिए, ये सबसे सही है, और इन 3 चीज़ों को अगर हमने मान लिया, फॉलो कर लिया, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा चल जाएगा. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं? आप 2 चीज़ से मेजर कर सकते हैं. एक हो गया हमारा ट्रांजिट टाइम, दूसरा हो गया हमारा रिस्पॉन्स टाइम. ट्रांजिट टाइम डेफिनेशन पढ़ो. Defined as the amount of time required for message to travel from one device to another. अब मैं इसका एक एग्जांपल देके अगर आपको समझाना चाहूँ, है ना, कि मुझे क्या करना है, ये मेरा पैकेट है. ओके. रिलायबिलिटी पे आ गए अपन. ओके. यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इस स्लाइड पे आएंगे. चलें. ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये पैकेट अगर मुझे सेंड करना है, इसके आगे वाली स्लाइड पे जाना है. ये मेरा पैकेट है, इस पैकेट को मुझे सेंड करना है. तो इस पैकेट को सेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही रूट से सेंड करूँगी. इंटरनेट है, इंटरनेट मीन्स कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे रूट्स हैं. तो ये मेरा जो पैकेट है, सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स, ये मेरा पूरा एक मैसेज बना रहा है. तो मान लो मैंने पैकेट 1 यहाँ से भेज दिया, पैकेट 2 यहाँ से भेज दिया, 3 यहाँ से भेज दिया. ठीक है. अब वो सीक्वेंस में वापस पहुँचे 1 2 3. सो ये सारे पैकेट्स जाने में और आने में, यहाँ मैसेज रिसीव होने में कितना टाइम लगा, इसको हम बोल देंगे ट्रांजिट टाइम. रिस्पॉन्स टाइम, गूगल में कोई क्वेरी दी, चैट जीपीटी, अब तो गूगल का ज़माना चला गया, पीपल आर लाइक चैट जीपीटी भाई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ब्लैक बॉक्स एआई, फलाना ढिमकाना, यही लगे हुए हैं. सो क्या किया हमने, चैट जीपीटी पे कोई भी प्रॉम्प्ट दी, कितना टाइम लगा चैट जीपीटी को उसका रिप्लाई जनरेट करने में, मींस क्वेरी में और आंसर आने में जो टाइम लैप्स था. ठीक है. वो हो गया आपका रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी जल्दी आपके पास रिस्पॉन्स आता है. और जो अलग फैक्टर्स है जो परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ यूजर्स. सही बात है भाई, अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा डेटा भी स्टक होने लगेगा. ठीक है.
टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, किस तरीके की ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल्स है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, ये आएगा हमारे डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट में। जो मैंने अभी बोला इतने फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ये हम इस्तेमाल करेंगे डेटा कम्युनिकेशन में। इस प्लेलिस्ट में आगे हम डेटा कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, तो अभी इन शब्दों के बारे में चिंतित ना होएं। आगे हो जाएगा कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है वो कितना डेटा सेंड कर सकता है, क्या है उसकी कैपेबिलिटी, दैट ऑल्सो मैटर्स। देन एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी मतलब कितना कंप्यूटेशनल डेटा वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। इसके बाद आती है दूसरी चीज़, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ टाइम टू फेलियर, मतलब कितनी बार आपका सिस्टम फेल होता है काम करने के दौरान। इफ़ आई से दैट आई एम वर्किंग इन माई सिस्टम, हाउ मेनी टाइम्स माई सिस्टम इज़ फेलिंग, एंड उससे हमें क्या देखना है, उसकी रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, कि वो फॉल्ट में जाने के बाद भी कितनी जल्दी रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिलायबिलिटी। और नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पैरामीटर तो सबको पता है कि मैं भी चाह रही हूँ कि वॉट एवर मैसेज आई एम सेंडिंग फ्रॉम माई सेल्फ टू द पर्सन हुम सो एवर आई वॉन्ट टू सेंड, वो मैसेज बीच में कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। जैसा मैंने भेजा है वैसे ही सामने वाले के पास पहुँचे, और सामने वाला मुझे भेज रहा है तो वैसे ही मेरे पास पहुँचे। तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे आके हम अपनी पीपीटी को विराम देंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने फर्स्ट इमेज आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो क्या थी फर्स्ट इमेज हमारी, ये थी। मैंने बताया था कि कंप्यूटर को हम सिर्फ ऐसे ही लेआउट नहीं कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन ले आउट द सिस्टम, द लाइन कॉन्फ़िगरेशन विच वी कॉल एज टोपोलॉजीज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोपोलॉजीज होने वाला है, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेटेज अच्छा खासा है इस यूनिट का, सो प्लीज बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।